Hello friends, this is Aswini Sadhna Arjun, and in our last lecture we have discussed the introductory part of law of tort, and today we are going to discuss next important topic of law of tort, that is defenses under law of tort. Friends, as we have discussed earlier, that whenever a legal right of a person has been infringed or violated by the act or omission of any other person, then it is called a wrong. And if the wrong is of so serious nature, and if that wrong has been categorized as a crime under any penal law, then it is called a criminal wrong. But if the wrong is not of so serious nature, then it is called a civil wrong. And we have discussed that tort is a civil wrong. But if that person who commits the tort, or we can say if the tort feature, or if the defendant has some legal justification for his or her act, then that person may not be held liable for that particular act. And these legal justifications are called defenses under law of tort. So we can say whenever a case is brought against the defendant for the commission of a tort and all the essential elements of that wrong are present, the defendant would be held liable for the same. But there are some cases in which the defendant can avoid his liability by taking the plea of the defenses available under the law of torts. And these defenses are called presence of legal justification. As we have discussed earlier, that whenever the wrongdoer proves that he or she has some legal justification for wrongful act, then he or she may not be held liable. Even the act fulfills the all essential element of law of torts. So there are many defenses, or we can say there are many exceptions. And those defenses are, first one is volenti non fit injuria. It is also known as defense of consent. Second one is the plaintiff wrongdoer. Third one is inevitable accident. Fourth one, act of God. Private defense, mistake, necessity, and statutory authority. And in this lecture, we are going to discuss these all defenses under law of tort. So we start with the first defense, that is volenti non fit injuria. As we have discussed earlier, that volenti non fit injuria means the defense of a consent, or we can say whenever any person gives his or her consent to bear any harm, after that he or she is not supposed to get compensation. Or we can say in case a plaintiff voluntarily suffers some harm. The word voluntarily is very important because it reveals the consent of plaintiff. So we can say whenever a plaintiff voluntarily suffers some harm, then he has no remedy for that under the law of tort, and he is not allowed to complain about the same, because whenever any person voluntarily abandoned or waived or left his or her right, then it is presumed under the law
that now that person will not ask compensation. And we have discussed earlier that consent may be given either by express or implied. Express consent means whenever the consent has been given in words, whether the words are in writing or oral, that consent will be considered as express consent. What if the consent is not given in words? Or we can say if the consent is given by the act of the parties or by the act of the person, then it is called an implied consent. And the most important element under this defense is to get the defense, the act should not be beyond the limit of what has been consented. Or we can say that person will not be held liable only for those acts for those he has given his or her consent. If the act is beyond the limit of consent, then the defense of volunty non fit injuria is not applicable. Now we are going to discuss some very important case laws on this very topic. First one is Hall versus Brooklands Auto Racing Club. As we have discussed earlier, that whenever any person gives his or her consent to watch a cricket match, a horse race, or auto racing, or car race, then it is presumed under law that the person has given his or her implied consent to bear any harm during the match or during the race. So in this very case, the plaintiff was a spectator of a car racing event and the track on which the race was going on belonged to the defendant. During the race, two cars collided and out of which one was thrown among the people who were watching the race. The plaintiff was injured. And the court held that plaintiff knowingly undertook the risk of watching the race. It is type of injury which could be foreseen by anyone watching the event. The defendant was not liable in this very case. The next case is Padmavati versus Dukanaika. In this case, the driver of the jeep took the jeep to fill petrol in it. Two strangers took a lift in the jeep. The jeep got damaged, and the two strangers who took lift were thrown out of the jeep and one of them died. And in this very case also, the court observed that the plaintiff impliedly took the risk of such injury and defendants were not held liable. Next case is Wooldridge versus Sumner. It is also a case of horse racing in which plaintiff injured and the court observed that the defendants were not held liable because they had taken due care and precautions. Next case is Thomas versus Quatermain. In this case also, the plaintiff was an employee in the defendant's brewery. He was trying to remove a lid from a boiling tank of water. The lid was stuck, so the plaintiff had to apply an extra pull for removing the lid. The force generated through the extra pull threw him in another container which contained scalding liquid and he suffered some serious injuries due to the incident. And the court also observed that defendant was not held liable as the danger was visible to him and the plaintiff voluntarily did something which caused him injury.
So the all cases are related to voluntary non-fit injuria. But friends, as we have discussed earlier, whenever the term consent is used in law, then we all are aware that consent means a free consent. Because whenever we discuss the term consent under Indian Contract Act 1872, then the term consent has been defined under section 13 of Indian Contract Act. And according it, consent means whenever two persons agreed upon the same things in the same sense. And the definition of free consent has been provided under section 14 of Indian Contract Act. And according to section 14, the consent is not said to be free if it has been caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake. So in case of tort, it is also essential element that consent must be a free consent. If the consent has been caused by fraud, compulsion, then that consent is not considered a free consent. So for this difference to be available, it is important to show that the consent of the plaintiff was freely given. And if the consent was obtained under any compulsion or by fraud, then it is not a good defense. The consent must be given for any act done by the defendant. The important thing is that the consent must be given for an act done by the defendant. For example, if you invite someone to your house for dinner and he enters your bedroom without permission, then he will be liable for trespass. अब यहां पे देखिए, हम पढ़ रहे हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ये क्या है कि अगर किसी के पास मतलब डिफेंडेंट के पास, अगर डिफेंडेंट के पास कुछ लीगल जस्टिफिकेशन है उसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए, तो उसको लायबल नहीं बनाया जाएगा। फिर हमने देखा कि 8 तरह के एक्सेप्शन से 8 तरह के डिफेंसेस लॉ ऑफ टॉर्ट में दिए गए। फर्स्ट वन वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया जो है वो हम पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि अगर किसी ने कंसेंट दे दी है तो इसका मतलब उसने अपने कंपनसेशन को या डैमेज को लेने का जो राइट है वो वेव कर दिया है या छोड़ दिया है। बाकी चीजें तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है। हम ये भी समझ गए हैं कि कंसेंट का मतलब फ्री कंसेंट है, कंसेंट जो है वो हमें फ्री होनी चाहिए। यहां एक पॉइंट है, द कंसेंट मस्ट बी गिवन फॉर एन एक्ट डन बाय द डिफेंडेंट। यहां पे कुछ चीजें आप देखिए, समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमने किसी पर्सन को डिनर पे बुलाया, इनवाइट किया, और डिनर जो है वो हमने बाहर जो है लॉन में स्टार्ट करवा दिया है। अब डिनर कहाँ होना है? लॉन में होना है। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स को हमने इनवाइट किया था, मिस्टर एक्स जैसे ही डिनर करने के लिए आते हैं, उनको हमारे ही कुछ लोग पकड़ लेते हैं और हम उन पे केस फाइल करते हैं कि इन्होंने हमारे यहाँ ट्रेसपास किया। और ट्रेसपास क्या होता है? ट्रेसपास मतलब होता है विदाउट द परमिशन ऑफ एनी पर्सन इफ एनी अदर पर्सन एंटर्स इनटू हिज और हर प्रॉपर्टी। क्या आप अगर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं बिना उसकी परमिशन के, तो ये कहा जाता है कि आपने ट्रेसपास किया है। तो यहाँ पे इसको ट्रेसपास के लिए लायबल नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये अपना एक डिफेंस ले लेगा वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का। ये कहेगा कि भाई हमको अपने आप तो आया नहीं है, आप देखिए मेरे पास एक लीगल जस्टिफिकेशन है आपके घर आने का, क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया है। अब यहाँ दो चीजें हैं कि जिसको इनवाइट किया है वही आए। ऐसा ना हो कि मान लो इनवाइट हमने एक्स को किया है, एक्स तो आ नहीं पाया, उन्होंने भेज दिया बाई और जेड को, तो बाई और जेड को हम ट्रेसपास के लिए लायबल बना सकते हैं। दूसरी चीज, हमने अभी देखा कि जो भी पर्सन कंसेंट दे रहा है, तो जिस बात के लिए कंसेंट दी है उसी के लिए उसको जो है वो रेमेडी मिलेगी। अगर कोई पर्सन उसकी कंसेंट की लिमिट के बियॉन्ड जाके कोई काम कर देता है, तो फिर उसको रेमेडी नहीं मिलेगी या ये डिफेंस नहीं मिलेगा। अब जैसे किसी को आपने डिनर के लिए बुलाया, अब डिनर लॉन में चल रहा है, वो कहाँ मिल रहा है? बेडरूम में मिल रहा है विदाउट योर परमिशन। इसका मतलब है वो पर्सन लायबल हो जाएगा ट्रेसपास के लिए। हाँ, इफ द कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर कंपल्सन,
There is no consent when someone consent to an act without free will or under some compulsion. It is also applicable in the cases where the person giving consent does not have full freedom to decide. And this situation generally arises in a master-servant relationship where the servant is compelled to do everything that his master asks him to do. So we can say thus there is no applicability of this maxim voluntaria non fit injuria when a servant is compelled to do some work without his own will. But this have to be proved to the servant that his or her consent is not a free consent. Now we are going to discuss a very technical and important aspect of voluntary non-fit injuria, because it says that mere knowledge does not imply assent, or we can say there is another maxim, scienti non fit injuria, which means a person only having knowledge about the risk. Scienti non fit injuria means a person only having knowledge about the risk. And scienti non fit injuria is not a defense under law of tort. The defense is voluntary non fit injuria. And voluntary non fit injuria means two essential elements. First one, person having knowledge about the risk, and second, having knowledge about the risk and knowingly agreed to suffer harm. दो चीजें हैं. पहली, एक तो वो जानता है कि खतरा है, केवल वो जानता है कि खतरा है, ये साइंटी नॉन फिट इंजुरिया है. और साइंटी नॉन फिट इंजुरिया कोई डिफेंस नहीं है लॉ ऑफ टॉर्ट में. डिफेंस क्या है? वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया. और वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया के लिए दो एसेंशियल्स का पूरा होना जरूरी है. पहला, द प्लेंटिफ न्यू. व्हाट न्यू? दैट प्रेजेंस ऑफ रिस्क, presence of danger. Second, he had knowledge about the risk and knowingly agreed to suffer harm. There is a very leading case on this very topic, that is Smith versus Baker. In this very case, the plaintiff was an employed to work on a drill for the purpose of cutting rocks, and some stones were being conveyed from one side to another using crane surpassing his head. He was busy at work and suddenly a stone fell on his head, causing injuries. The defendants were negligent as they did not inform him. So in this very case, the court held that mere knowledge of risk does not mean that he has consented to risk. So the defendants were liable for this, and the maxim is voluntary non fit injuria did not apply, because here the person only knows about the risk, but he has not given his consent to suffer the harm. But if a workman ignores the instructions of his employer, thereby suffering injury, in such cases this maxim applies. और we can say, देखिए स्मिथ वर्सेस बेकर एक बहुत ही अच्छा केस है इस पे, क्योंकि ये साइंटी नॉन फिट इंजुरिया पे है, और किसी भी बाकी जितने केसेस हैं वो सब वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया पे है. तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि उसमें वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया के प्ली को डिनाई कर दिया गया था. क्यों डिनाई कर दिया गया था? एक्चुअली में इसमें एक प्लेंटिफ था जो पत्थर काटने का काम चल रहा था, वहां ये काम कर रहा था, और वहीं पे एक क्रेन से पत्थर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा रहे थे इसके सर के ऊपर से होते हुए. अब यहाँ अगर कोई काम कर रहा है तो हाँ जानकारी है इसको, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसने अपनी कंसेंट दे दी है कि आप हमें कुछ भी नुकसान पहुंचा दो. और देखिए इस केसेस में अगर ये प्रूव हो जाता है कि सामने वाली पार्टी जो डिफेंडेंट्स है ये नेग्लिजेंट है, नेग्लिजेंटली इन्होंने कोई काम किया है, तो फिर वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता, उसका डिफेंस नहीं मिलता. लेकिन हाँ अगर कोई वर्कमैन जो है वो अपने एम्प्लॉयर के इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो ना करे, मान लो इस केस में तो नहीं था लेकिन कोई और अलग केस होता है जैसे सेम यही फैक्ट होते, लेकिन उसके एम्प्लॉयर ने कह रखा था देखिए क्रेन जो है ये आधे घंटे काम करेगी
और इस आधे घंटे में आपको काम नहीं करना है, आपको अलग रहना है, क्योंकि हो सकता है जब क्रेन पत्थर ले जाती है कोई पत्थर आपके ऊपर गिर जाए, और इन इंस्ट्रक्शन को ना मानते हुए आप इस आधे घंटे में भी काम कर रहे हैं, तब फिर दूसरी पोजीशन हो जाएगी। डैन वर्सेस हैमिल्टन, ये एक ऐसा केस है इस टॉपिक पे जिसकी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। क्यों? इन दिस केस, अ लेडी, even after knowing that the driver was drunk, chose to travel in the car instead of any other vehicle. Due to the negligent driving of the driver, an accident happened which resulted in the death of the driver and injuries to the passenger herself. The lady passenger brought an action for the injuries against the representatives of the driver who pleaded the defense of voluntary non-fit injuria. But the claim was rejected and the lady passenger was entitled to get compensation. In this case, this maxim means voluntary non-fit injuria was not considered because the driver's intoxication level was not that high to make it obvious that taking a lift could be considered as consenting to an obvious danger. And this decision was criticized on various grounds as the court did not consider contributory negligence while deciding the case. But the court's reason for not doing so is that it was not pleaded that, that's why it was not considered. एक्चुअली में डैन वर्सेस हैमिल्टन में क्या हुआ कि एक लेडी ने लिफ्ट ली एक टैक्सी में, और लिफ्ट लेते ही समय उसको पता लग गया कि ड्राइवर जो है ये बहुत ज्यादा ड्रिंक किए हुए हैं। इवन देन उसने रिस्क लिया और उसी ड्राइवर के साथ उसने ट्रेवल किया, जबकि वो किसी दूसरे व्हीकल को भी यूज कर सकती थी। बाद में नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर की डेथ हो गई और ये महिला भी इंजर्ड हो गई। इस महिला ने जो उस ड्राइवर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे उनके अगेंस्ट में केस फाइल किया कि इसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने डिफेंस ये लिया कि भाई कंपनसेशन इसको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया एक मैक्सिम है जो ये कहती है कि अगर किसी ने कंसेंट दे दी है तो इसका मतलब अब उसे कंपनसेट नहीं हमें देना होगा। और भाई जब ये जान रही है वो ड्रिंक किए हुए है तो इसका मतलब उस रिस्क की इसने जानकारी भी थी, और जो फिर भी आप बैठ रहे हो तो इसका मतलब आपने कंसेंट भी दे दी थी। लेकिन कोर्ट ने इस प्ली को नहीं माना। अब कोर्ट ने ये कह दिया कि देखिए उसने ड्रिंक तो की थी लेकिन उसका जो ड्रिंक का लेवल था, इंटॉक्सिकेशन का जो लेवल था वो इतना ज्यादा नहीं था कि वो गाड़ी ना चला पाता। अब जैसे कि आपको भी लग रहा है इलॉजिकल बिल्कुल जजमेंट था, ये बहुत ज्यादा इसका क्रिटिसिज्म किया गया। और यहाँ ये एक बात ये कही गई कि भाई अगर कोई बात थी तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस पे क्यों नहीं डिसाइड किया गया। ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में क्या होता है, जिसमें दोनों पार्टी जो है वो नेग्लिजेंटली काम करते हैं, दोनों की गलती होती है, तो कंपनसेशन उसी रेशियो में दिया जाता है, कम किया जाता है, जो भी चीजें रहती है वो उस हिसाब से डिसाइड कर दी जाती है। अब कोर्ट का ये कहना था कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस पे हमने इसलिए नहीं डिसाइड किया क्योंकि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की प्ली जो है वो हमसे ली ही नहीं गई थी, और जब तक आप कोर्ट से कोई चीज मांगेंगे नहीं, कोर्ट अपने आप से कोई चीज नहीं देता। अब हम बात करते हैं नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट, कि अगर डिफेंडेंट खुद नेग्लिजेंट हो। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया में अगर डिफेंडेंट खुद नेग्लिजेंस कर रहे हैं तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस उनको नहीं मिलेगा। So in order to avail this defense, it is necessary that the defendant should not be negligent, and if the plaintiff consents to some risk, then it is presumed that the defendant will not be liable. For example, when someone consents to a surgical operation and the same becomes unsuccessful, then the plaintiff has no right to file a suit, but if the same becomes unsuccessful due to the surgeon's negligence, then in such cases he will be entitled to claim compensation. सिंपल सी वही बातें हैं कि अगर नेग्लिजेंट होगा तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का बचाव नहीं मिलेगा उसको। कुछ और मामले हैं जिसमें वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस नहीं मिलता है, वो है रेस्क्यू केसेस, बचाव के मामले। मतलब किसी को बचाते हुए
अगर किसी को इंजरी होती है तो सामने वाली पार्टी ये नहीं कह सकती कि आपने जानबूझ के खतरा क्यों मोल लिया। इसका मतलब है कि आपने अपनी कंसेंट दे दी थी। इसमें लीडिंग केस है हैंस वर्सेस हार्वुड का। इसमें क्या हुआ था कि एक घोड़ा गाड़ी थी जिसको ऐसे ही छोड़ दिया और अंदर चला गया घोड़ा गाड़ी वाला। वहां पे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कुछ पत्थर उत्थर मार दिया होगा जिससे वो घोड़े भाग खड़े हुए, जिससे एक बच्चा और एक कुछ लोग जो थे वो बहुत डेंजर में आ गए। अब उनको बचाने के लिए कांस्टेबल ने क्या किया, उस घोड़ा गाड़ी को रोकने का प्रयास किया जिसमें वो इंजर्ड हो गया। इसने कंपनसेशन की डिमांड की तो डिफेंस उन्होंने यही लिया डिफेंडेंट्स ने कि इसने तो अपनी सहमति दी थी। भाई जब तुम जान रहे हो कि घोड़ा गाड़ी इतनी तेज है, उसे अगर रोकोगे तो तुम्हारे चोट भी लग सकती है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, रेस्क्यू केसेस में ये डिफेंस आपको अवेलेबल नहीं है, वरना तो कोई किसी को कभी बचाएगा ही नहीं। ठीक, तो बचाव के मामले में भी वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। केस वही है, डिफेंडेंट सर्वेंट लेफ्ट टू अनअटेंडेड हॉर्स इन अ पब्लिक स्ट्रीट. A boy threw a stone on the horse, due to which they bolted and created danger for women and other people on the road. So a constable came forward to protect them and suffered injuries while doing so. This being a rescue case, so the defense of voluntary non-fit injuria was not available and the defendants were held liable. वैगनर वर्सेस इंटरनेशनल रेलवे, सेम यही केस है। इसमें एक पैसेंजर को जो था वो ट्रेन से उतार दिया गया था नेग्लिजेंटली डिफेंडेंट्स के द्वारा। बाद में उसका एक फ्रेंड जब ट्रेन रुकी उसको ढूंढने के लिए गया और खुद इंजर्ड हो गया। तो ये भी रेस्क्यू केस था और इसमें भी डिफेंडेंट्स को लायबल बनाया गया और वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया को डिफेंस जो था वो नहीं दिया गया। एक चीज और होती है, ये एक्चुअली में कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस हमको पढ़ना है आगे। जब हम नेग्लिजेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे नेग्लिजेंस के साथ नेग्लिजेंस, रेसिप्शल ऑक्यूटर और कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस, ये तीन टॉपिक एक साथ पढ़ते हैं। कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस क्या होता है, दोनों की जिसमें नेग्लिजेंस है, प्लेंटिव भी कुछ नेग्लिजेंट कर रहा है, गलती है, और डिफेंडेंट्स की भी कुछ गलती है। तो इन केसेस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया में कभी कभी डिफरेंस पूछ देते हैं। तो देखिए, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया इज अ कंप्लीट डिफेंस। Voluntary non-fit injuria जो है complete defense है, but the defense of contributory negligence came after the passing of the law reform Contributory Negligence Act 1945. आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। In contributory negligence, the defendant's liability is based on the proportion of fault in the matter. उस मैटर में उसने जितने प्रोपोर्शन में गलती की है उसी पे उसका कंपनसेशन डिसाइड हो जाता है। In the defense of contributory negligence, both are liable, the defendant and the plaintiff. अब कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस में क्या होता है, दोनों लायबल होते हैं क्योंकि दोनों गलती होती है। लेकिन वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया में ऐसा नहीं है। इन वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया द प्लेंटिफ नोज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डेंजर which he encounters, and in case of contributory negligence on the part of the plaintiff he did not know about any danger. इसमें वो डेंजर को जानता भी है, जैसे रेस्क्यू के केसेस थे उसमें नहीं जानता। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस कंप्लीट हुआ वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। इसके बाद बहुत छोटे छोटे से हैं, उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें कुछ केस लॉ और बाकी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सेकंड है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। मान लीजिए अगर प्लेंटिफ ने खुद कोई गलती की है, उसका डिफेंडेंट से कहे कि भाई कंपनसेशन दो, तो ये तो सही बात नहीं है कि अगर आप खुद गलती कर रहे हो तो अपनी गलती के लिए दूसरे से कैसे कंपनसेट ले सकते हो। तो एक मैक्सिम है, एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्सुयो। इसका मतलब होता है फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेस, कि अगर आप खुद इमोरल कॉज कर रहे हैं तो कोई एक्शन अराइज नहीं होता है। And if the basis of the action by the plaintiff is an unlawful contract, then he will not succeed in his action and he cannot recover damage. कि अगर आप खुद गलती कर रहे हो तो फिर आपको डैमेज नहीं मिलेगा। वर्ल्ड वर्सेस हॉलब्रुक का केस है, ये आगे भी हमें प्राइवेट डिफेंस में भी पढ़ना है, लीडिंग केस है। इसमें क्या होता है, जो डिफेंडेंट्स होता है वो अपने घर में कुछ स्प्रिंग गन्स लगा देता है जिससे कि कोई ट्रेसपासर अगर आए तो उसको वो चल जाए। तो हमने ये भी देखा है कि देखिए प्राइवेट डिफेंस हो उसकी भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज को। अब मान लीजिए आप अपने घर के चारों तरफ तार लगा दीजिए, उसकी बाउंड्री लगाइए, ग्लास तोड़ के कुछ लोग लगा देते हैं जिससे बंदर और बच्चे और कोई जो है उसको पार न कर पाए। अब कोई आपके यहाँ ट्रेसपास ना करे इसके लिए ये थोड़ी ना आप करेंगे कि आपने चारों तरफ वायर लगा दिया, उसमें जो है वो करंट आपने दौड़ा दिया।
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टार्ट कर दी है, पता लगे कि कोई बच्चा जो है अमरूद चुराने के लिए ही गया था और वो चिपक के मर गया, तो ये कहा जाएगा कि जो आपको लेनी चाहिए थी प्रिकॉशन, उससे आपने ज्यादा ले रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। वहां पे ये नहीं कह सकते कि इनकी गलती थी। अरे इनकी तो गलती थी, तो इनकी गलती की सजा कितनी मिलनी चाहिए थी भाई? अमरूद तोड़ने कोई आया है या मान लीजिए ट्रेसपासर है तो उसकी एक लिमिट है सजा की, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप करंट लगा के रखोगे। इस केस में भी यही हुआ था। इन दिस केस द plaintiff was entitled to recover damage from the defendant due to spring guns set by him in his garden without any notice for the same। इंपॉर्टेंट चीज ये है, विदाउट एनी नोटिस फॉर द सेम। जैसे कुछ लोग लिख देते हैं ना, कुत्तों से सावधान, कुत्ता अगर घर में है तो वो बाहर बोर्ड लगा देते हैं। ऐसे ही अगर आपने गन्स लगाए हैं तो आप एक को लगा देना चाहिए कि कोई भी अंदर ना आए, हमने ऐसे गन्स लगा रखे हैं जिससे आपकी इंजरी हो सकती है। तो वैसे अगर प्लेंटिफ गलती पे है तो उसको बचाव नहीं मिलेगा। ये केस हमने इसलिए दिया है कि ये उसके अपोजिट पे है, मतलब प्लेंटिफ गलती है लेकिन उस गलती के लिए आपकी भी एक लिमिट है, और इस केस में उस लिमिट को बियॉन्ड जाके, एक्चुअली में ये केस जो है वो मेनली है प्राइवेट डिफेंस पे, आगे हम उसको दोबारा देखेंगे। सेकंड हमारा जो बचाव है, डिफेंस है, वो है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब होता है अवश्यंभावी दुर्घटना, ऐसा एक्सीडेंट जिसको आप चाह के भी रोक नहीं सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है और वो होके ही रहेगा। और कभी भी इनएविटेबल एक्सीडेंट आपने खुद ना चाहा हो, कि खुद ही आपने चाह लिया जिससे आप इसका बेनिफिट ले लें। तो अगर इनएविटेबल एक्सीडेंट है तो ये भी एक डिफेंस है टॉर्ट में। जैसे आप देखिए अगर लिखा है एक्सीडेंट मींस एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी एंड इफ द सेम एक्सीडेंट कुड नॉट हैव बीन स्टॉप्ड or avoided in spite of taking all due care and precautions on the part of the defendants। इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब ही होता है जिसे आप ना रोक सके ना अवॉइड कर सके, पूरी केयर और प्रिकॉशन लेने के बाद भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, then we call it an inevitable accident and it serves as a good defense as the defendant could show that the injury could not be stopped even after taking all the precautions and there was no intent to harm the plaintiff। क्योंकि देखिए अगर इंटेंशन है, चाहे वो क्राइम हो चाहे टॉर्ट हो, तब तो फिर आप बच ही नहीं सकते। एक इस पे केस है, एक क्या कई केसेस हैं, नाम याद रखिए, सब सिंपल से हैं। स्टैनली वर्सेस पॉवेल का, इसमें क्या हुआ था, द डिफेंडेंट एंड द प्लेंटिफ वेंट टू अ फिजन शूटिंग। मतलब ये है कि दोनों लोग ये शूटिंग के लिए गए, शिकार करने के लिए गए, और एक ने कोई बुलेट चलाई, वो पेड़ से टकरा के दूसरे के लग गई आगे। तो कोर्ट ने ये कहा ये इनएविटेबल एक्सीडेंट था, इसे चाह के भी नहीं रोका जा सकता, तो डिफेंडेंट को लायबिल नहीं बनाया गया। ब्राउन वर्सेस कैंडल, इसमें दो कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, उनकी लड़ने की वजह से जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट था, इसमें से एक इंजर्ड हो गया, उसने जो है केस फाइल किया। यहाँ भी कोर्ट ने यही कहा ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है और इसके लिए लायबिल नहीं बनाया जा सकता। कोई खास चीज नहीं है, आप पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। एक्ट ऑफ गॉड, ये थोड़ा सा अच्छा है, इस पे वो मूवी भी है परेश रावल वाली, ओ माय गॉड। ओ माय गॉड है या OMG क्या है वो आप देख लेना, उसमें पूरी मूवी जो है एक्ट ऑफ गॉड पे ही चलती है। मतलब ये है कि एक्ट ऑफ गॉड एक बहुत अच्छा डिफेंस है अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। अब देखिए एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल एक्सीडेंट लगभग सेम लगते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है दोनों में, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड में भी जो भी चीज है वो इनएविटेबल होती है, उसे आप रोक नहीं सकते। अब भूकंप आ रहा है तो भूकंप को आप रोक थोड़ी ना लेंगे, सुनामी आ रहा है तो सुनामी को आप रोक नहीं सकते हैं, आपके कंट्रोल में ही नहीं है। और इनएविटेबल में भी यही होता है। तो फिर एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल में डिफरेंस क्या है? केवल इतना ध्यान रखिए कि एक्ट ऑफ गॉड का मतलब होता है ये हमेशा होगा तो ये नेचुरल फोर्स से होगा, प्राकृतिक आपदा होगी, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो स्टॉर्म हो, चाहे हैवी रेनफॉल हो। और इनएविटेबल एक्सीडेंट जो है ये किसी ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी होगा। ठीक, तो देखिए लिखा हुआ है द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड एंड इनएविटेबल एक्सीडेंट माइट लुक द सेम बट दे आर डिफरेंट। Act of God is a kind of inevitable accident in which the natural forces play their role and causes damage. For example, heavy rainfall, storms, tides, और आप बढ़ा लीजिए अर्थक्वेक्स हो गए, सुनामी हो गया, जो चाहो आप लिख लो इसमें।
अब इसेंशियल्स क्या है एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लेने के लिए? दो चीजें प्रूव करनी होती है। फर्स्ट, देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस। अभी हमने डिस्कस किया कि ये एक तरीके का इनएविटेबल ही होता है, लेकिन इसमें जो वर्किंग है वो किसकी होनी चाहिए? नेचुरल फोर्स की होनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी क्या है? देयर मस्ट बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस एंड नॉट द वन विच कुड बी एंटीसिपेटेड एंड गार्डेड अगेंस्ट रीजनेबली। दो चीजें हैं कि एक तो नेचुरल फोर्स हो और दूसरी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ये नहीं कि थोड़ी सी बरसात हुई और उससे किसी का नुकसान हो गया, आप कह दो ये तो एक्ट ऑफ गॉड था। अगर बरसात ना होती तो मेरी दीवार नहीं गिरती और तुम्हारा नुकसान नहीं होता। तो कोर्ट ये भी कहेगा भाई बरसात तो हर सीजन में आती है, तो दीवार तुम्हें ऐसी बनानी चाहिए थी जिससे बरसात में ना गिरे। लेकिन मान लो इतनी बरसात हुई जिसकी कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, तब एक्ट ऑफ गॉड का आपको डिफेंस मिल जाएगा। इस पे केस भी है। अब पहले तो बात करते हैं वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस की। इस पे केस है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। इसमें यही है कि एक पर्सन जो है वो पानी इकट्ठा करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल होता है उस समय, जो ह्यूमन मेमोरी में उतनी बरसात कभी हुई ही नहीं थी। तो उससे ये पानी बह जाता है, ब्रिज होते हैं दूसरे के, वो टूट जाते हैं, वो केस फाइल करता है, प्ली एक्ट ऑफ गॉड की ली जाती है और उस प्ली को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कोर्ट ये कहता है कि डिफेंडेंट लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है, इसको ना तो एंटिसिपेट किया जा सकता था और ना ही इसको रोका जा सकता। पढ़ सकते हैं आप, बहुत इजी है। द डिफेंडेंट क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल लेक ऑन हिज लैंड बाय कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम नेचुरल स्ट्रीम्स. Once there was an extraordinary rainfall, heaviest in human memory. The embankments of the lake got destroyed and washed away all the four bridges belonging to the plaintiff. The court held that the defendants were not liable as the same was due to the act of God. Occurrence must be extraordinary. ये भी हमने कहा कि occurrence जो है वो extraordinary होनी चाहिए। ये वही illustration है इसमें जो हमने आपको दिया कि थोड़ी सी बरसात होती है, एक की दीवार गिर जाती है और दूसरे के बच्चों को इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है उनकी। कोर्ट यहाँ पे उनको लायबल बनाती है। क्यों? क्योंकि जो बरसात थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, उतनी बरसात बरसात के मौसम में होती ही रहती थी। तो इसमें जो था उनको लायबल बनाया गया। प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस स्पेशली पढ़ना होता है क्रिमिनल लॉ में। यहाँ भी आप प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये समझिए कि हर आदमी को ये राइट दिया गया है कि वो अपनी बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकता है, बल्कि अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी और दूसरे की बॉडी और प्रॉपर्टी की भी रक्षा वो कर सकता है, ये उसको राइट दिया गया है। लेकिन यहाँ पे डिफेंस केवल उसी चीज के लिए होगा जो वाकई में आपको इमिनेंट थ्रेट हो, कि तुरंत हमें जो है वो खतरा है। ये नहीं कि हमें खतरा है कि एक्स हमें मार देगा, मेरे मन में चल रहा है कि एक्स हमको मार देगा, तो हम जाके एक्स को मार दो, कहे हमने तो अपना बचाव किया है, तो हमने मारते तो ये कभी ना कभी तो हमें मार ही देता। नहीं, प्राइवेट डिफेंस आप तब यूज करेंगे जब आपको इमिनेंट थ्रेट हो, या तो लाइफ की या प्रॉपर्टी की। बाकी ये क्रिमिनल लॉ में बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। इस पे केस जो हमने बताया था उधर आपको जो प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर में हमने बताया था, यहाँ पे है वर्ल्ड वर्सेस होलब्रुक। ये केस वही है। द डिफेंडेंट फिक्स्ड अप spring guns in his garden without displaying any notice regarding the same, and the plaintiff, who was a trespasser, suffered injuries due to its automatic discharge. The court held that this act of the defendant is not justified and the plaintiff is entitled to get compensation for the injuries suffered by him. अब सोचिए, जो trespasser है उसी को compensation मिल रहा है। इसके बाद आता है मिस्टेक। मिस्टेक भी एक बचाव है टॉर्ट में। मिस्टेक आपको पता है, मिस्टेक दो तरह का होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मैक्सिम भी है इस पे। और हमें पता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ कांट बी एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट में भी एक्सक्यूज, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ अगर है तो उसका कोई बचाव नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट केवल बचाव दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसको लॉ में, लॉ ऑफ टॉर्ट में बचाव दिया गया। इनके नाम पता हो, इसमें कुछ बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं। मिस्टेक पे केस है मॉरिसन वर्सेस रिची एंड कंपनी का। अब इसमें क्या है
अब देखिए मिस्टेक बचाव तो है, लेकिन हमने कहा ना कि हर चीज का कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होता है। तो आप मिस्टेक से कोई काम करते हैं वो बचाव है, सही है। लेकिन जब हम डिफेमेशन पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, तो डिफेमेशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जानबूझ के किया है या धोखे से हो गया। भाई मान लो हम धोखे से किसी को अगर पेपर में किसी के लिए हम निकाल दें गलती से ही कोई गलत चीज, भाई उसका तो अपमान हो ही गया। अब हम कहें भाई गलती हो गई, गलती हो गई, इस काम नहीं चलेगा ना। इस केस में डिफेंडेंट ने क्या किया था, इन्होंने एक स्टेटमेंट पब्लिश किया था कि कोई पर्सन है, उसके ट्विंस पैदा हुए हैं, जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। सबकी सच्चाई ये थी, उस बेचारे की शादी हुए भी 2 महीने हुए थे, तो उसके लिए तो ये डिफेमेशन हो गया। इसकी शादी को भी 1-2 महीने हुए हों और तुम कह दो कि इसके 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। तो उसने भाई केस फाइल किया, इन्होंने मिस्टेक का डिफेंस लिया, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, डिफेमेशन के केस में आप ये नहीं कह सकते कि हमने गुड फेथ में काम किया है। ये जब हम लोग डिफेमेशन पढ़ेंगे अच्छे से तब आपको आइडिया। नेसेसिटी, नेसेसिटी होता है कि अगर किसी बड़ी हार्म को बचाने के लिए कोई छोटी हार्म करनी पड़ जाए तो वो कोई रॉन्ग नहीं है, और ये नेसेसिटी कहलाती है, आवश्यकता। कि अगर कोई बड़ी हार्म बचा, फॉर एग्जाम्पल मान लो लगातार घर बने हुए हैं 10 और एक फर्स्ट घर में आग लग गई, और उस फर्स्ट घर में आग बुझा रहे कई लोग, लेकिन पता है कि अब इस घर से बी में जाएगी, बी से सी में जाएगी। गांव में जब एक घर में आग लगती थी तो पूरे पूरे गांव जल जाते थे पहले, क्योंकि वो घास फूस से छप्पर बनाए जाते थे उसके, पक्के तो मकान होते नहीं थे इतने। तो मान लो लोग गांव वाले क्या करते थे, आधे गांव से ज्यादा लोग तो उस आग को बुझाने की कोशिश करते थे, और कुछ लोग क्या करते थे, उससे जो नेक्स्ट घर होता था उसे तोड़ने लगते थे। और पर्पज ये होता था कि अगर ये बीच की लाइन टूट जाएगी तो ये घर तो जल जाएगा, मान लो हम नहीं बचा सकते, लेकिन आगे का गांव बचाया जा सकता है। ये इस कॉन्सेप्ट पे डिफेंस है। इसमें जो एक ही सिस्टर इन लॉ थी, किर्क वर्सेस ग्रेगरी का केस है, ये मैच करने खूब आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कौन सा केस किस टॉपिक से रिलेट करके है। जो ये एक ही सिस्टर इन लॉ थी, एक ही डेथ के बाद इसने उसकी ज्वेलरी को छिपा दी, और बाद में जब पूछा गया तो कह रही है कि हमने इसलिए छिपा दी कहीं को चुरा ना ले जाए। तो ये इसका जो ग्राउंड था नेसेसिटी का वो नहीं माना गया, और कहा कि आपकी बातें इलॉजिकल हैं, और इसको लाइबल बनाया गया था। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये लास्ट हमारा जो है वो डिफेंस है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कहता है अगर किसी स्टैट्यूट ने किसी चीज को अलाउ किया है तो फिर आप उसके बदले में डिफेंस नहीं ले सकते हैं। स्टैट्यूट मतलब किसी लॉ ने, किसी एक्ट ने अगर कोई चीज प्रोवाइड कर दी है। अब मान लीजिए एक रेलवे का स्टैट्यूट है, उसने बता दिया कि रेल यहाँ से चलेगी चलेगी। अब रेलवे ट्रैक के किनारे जिनके मकान होते हैं उनसे आप पूछो, उसकी आवाज से मकान हिलने लगते हैं, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती जाती है। भाई कौन इतना आवाज में जाके सोएगा, जाके कौन खरीदेगा उस मकान को। लेकिन अब आप उन पर केस नहीं कर सकते कि हमें कंपनसेशन दो, तुम्हारी वजह से हमें नींद नहीं आ रही है, ट्रेनें निकलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। इस पे 3 केस हमें पढ़ने हैं। एक वॉगन वर्सेस टैफ बेल्ट रेल कंपनी का है। इसमें क्या होता है कि जो पहले तो आपको पता है कोयले वाली गाड़ियां चलती थी, तो इसकी चिंगारी से अपीलेंट्स की कुछ लकड़ी होती है वो जल जाती हैं। अब ये केस करता है तो रेलवे कंपनी डिफेंस लेती है कि भाई हम क्या करें, ये तो स्टैट्यूट में हमारे है कि ट्रेन तो चलेंगी ही चलेंगी, तो इसको कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। और ये कहा जाता है भाई ये तो स्टैट्यूट है, और स्टैट्यूट ने अगर कह दिया है तो फिर आपको कंपनसेशन कैसे मिलेगा। हैमर स्मिथ रेल कंपनी वर्सेस ब्रांड का केस है, इसमें भी यही हुआ था। इसमें भी नुकसान हो गया, और नुकसान होने के बाद इसमें भी डिफेंडेंट्स को लायबिलिटी नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि स्टैट्यूट का एक्ट था। इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो थर्ड केस है, स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें लायबिलिटी दी गई थी, और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर डिफेंडेंट नेग्लिजेंटली काम कर रहा है तो फिर उसकी लायबिल हो जाएगी। अब यहाँ क्या था, जैसे मान लीजिए कि रेलवे ट्रैक के पास में जो घास वगैरह उगाती है उसको काटने का काम किसका था? रेलवे का था। और रेलवे का ये काम था उस घास को काट के तुरंत वहां से हटा भी दे। अब इन्होंने क्या किया, वो घास काटी, वही इकट्ठी रहने दी, और काटी और यही इकट्ठी कर दी। ऐसे करते करते घास काफी इकट्ठी हो गई। अब उस चिंगारी से घास में आग लगी और पूरी घास जलने के बाद एक झोपड़ी में आग लग गई।
अगर वो घास वहां पे ना इकट्ठी की जाती तो कभी भी उस झोपड़ी तक चिंगारी नहीं जा सकती थी। तो इसका मतलब है रेलवे नेग्लिजेंटली काम कर रहा था। अब जब रेलवे नेग्लिजेंटली काम कर रहा था तो इसके लिए इनको लायबिल बनाया गया। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है डिफेंसेस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। जैसा कि आपको पता है कि ये हम जो चैनल पे है इससे पहले इन टॉपिक पे वीडियो बन चुके हैं, लेकिन वो बोर्ड पे थे और उस पे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया गया था। ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है कि ये आपका तब फायदा करेगा जब उन लेक्चर्स को आप सुन के पूरा कॉन्सेप्ट आपका बना हुआ है, तो एग्जाम के टाइम अब आपको रिवीजन करने के लिए एक ही लेक्चर में पूरा डिफेंस आपका कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा, सब केस आपके सामने आ जाएंगे और नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। कि अगर इतना भी आप अपने पास प्रिंट निकाल के स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, मेरी समझ से इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका ना हो या गलत हो। तो बस यही है कि भाई अगर चैनल आपने ना सब्सक्राइब किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहे हैं लेक्चर, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिससे वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सके। और अगर आपको भी नहीं समझ में आ रहे हैं तो ना तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करने की तो फिर बात ही अलग है, मतलब ही नहीं पड़ता। जब हम ही नहीं समझ में आया तो क्या उसका होना चाहिए। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।